بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویل ویشرز، انسپائر گروپ کی طرف سے آپ کو سلام. آئی شیئر ود یو اباؤٹ دا برانچ آف سائیکالوجی دیٹ از انڈسٹریل اور بزنس سائیکالوجی. مائی ڈیئر ویل ویشرز، انڈسٹریل اور بزنس سائیکالوجی از ویری امپورٹنٹ ان آور ڈیلی روٹین لائف، کیونکہ ہر انسان جب دنیا میں آیا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی سر انجام دیتا ہے جس کی بیس پر وہ ارننگ کرتا ہے. ارننگ کرنے کے بعد اپنا وہ گھر چلاتا ہے. انڈسٹریل اینڈ بزنس سائیکالوجی میں اٹ ڈیلز اور اسٹڈی اباؤٹ انالائز موٹیویشن تھنکنگ اینڈ انڈرسٹینڈ ہیومن بیہیویئر. جب کوئی بھی پرسنالٹی اور انڈیویجول ورک کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، تو اس وقت دیکھنا ہوگا، اس کا تجزیہ کرنا ہوگا، انالائز کرنا ہوگا کہ وہ پرسن وہ آنر آف دا انڈسٹری ہے، ورکرز ہیں، مینجمنٹ میں ہیں، وہ کس قدر موٹیویٹ ہیں کہ وہ سسٹم کو بہتر بنا سکیں. اسی طرح سے ان کی سوچ، تھنکنگ اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ اباؤٹ انڈسٹریل اینڈ بزنس سائیکالوجی، وہ کس قدر اپنی سوچ، تفکر، ریسرچ رکھتے ہیں. دیٹ انڈرسٹینڈ ہیومن بیہیویئر، کہ ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ وہ اس بزنس، اس آئٹم کے حوالے سے انسانی بیہیویئر کیسا ہے، کیا وہ اس کو چاہتا ہے، لائک کرنا چاہتا ہے یا ڈس لائک چاہتا ہے. اگر وہ لائک چاہتا ہے تو اس بیہیویئر کے تحت وہ بزنس اور انڈسٹری از سکسیسفلی آپریٹ ان دا ورک پلیس. یعنی کہ وہ پلیس جو آپ نے سلیکٹ کی ہے، فار ایگزامپل رینا لاخرد اور اوکاڑا اور منڈی بہاؤدین اور باما بالا، تو اس میں جب وہ کام کرنا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی شاپ بنانا چاہتا ہے، کوئی پلانٹ لگانا چاہتا ہے، تو اس ورک پلیس کو دیکھنا ہوگا کیا وہ ورک پلیس اکارڈنگ ٹو سوٹ انالیسز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. مینلی ہاؤ بزنس ورکس، کہ کس طرح سے وہ بزنس آپریٹ ہوگا، اینڈ ہاؤ امپلائیز فنکشن، کہ وہاں جو ورکرز ہیں وہ کس طرح سے اپنا کام سر انجام دیں گے. تو اس بزنس اینڈ انڈسٹریل سائیکالوجی میں ہمیں ویری امپورٹنٹ بات ہے کہ ورک پلیس کو دیکھنا ہوتا ہے، وہاں کے امپلائیز کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کی موٹیویشن اور تھنکنگ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کے وہاں کے رہنے والے جو سراؤنڈنگ میں عوام الناس رہتی ہے، ان کی ہمیں ان کے بیہیویئر کو دیکھنا ہوگا. تو اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھ کر ہم اپنے انڈسٹری اور بزنس اور شاپ کو آپریٹ کر سکتے ہیں. Now we discuss few points about industry and business psychology. Problems of the workers. اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بزنس کیا جاتا ہے تو اس میں وہاں کے جو امپلائیز ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، ان کے پرابلمز کو دیکھا جاتا ہے. ان کے آنے جانے کا پرابلم، ان کی ایجوکیشن کا پرابلم، ان کی فیملی چائلڈز کا پرابلم، ان تمام پرابلمز کو اگر سالو کیا جائے گا تو ورکرز جو ہیں 100% آپ کو رزلٹ دیں گے. اسی طرح سے ہم ان کی ٹریننگ کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو ورکرز ہیں، جب ایک انسٹیٹیوشن ہے، ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن جس کو ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کہتے ہیں، اگر وہ اپنے ٹیچرز کی جو اس کے سبارڈینیٹ ہیں، اگر ان کی ٹریننگز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ میتھمیٹکس کو، فزکس کو، کیمسٹری کو، اردو اور دیگر سبجیکٹس کو پڑھانے کے وہ ماہر ہوتے ہیں. ان کا جو نالج ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور نئے تقاضوں کے مطابق، جدید تقاضوں کے مطابق
वो स्टिमुलेट हो जाता है। जिस तरह से एक स्टिमुलस होता है वो फौरी चेंज लाता है अपने सिस्टम में। जैसे फॉर एग्जांपल समोसे सामने आ जाएं तो फौरी चेंज आती है कि उसको देखने वाले उनके मुंह में पानी आ जाता है। इसी तरह से एक महफिल हो रही हो, एक सेमिनार हो रहा हो, अचानक वहां पर एक स्नेक सांप नमूदार हो जाए तो वहां पर फौरन चेंज आती है। तो वहां पर स्नेक या समोसे एक किरदार अदा करते हैं स्टिमुलस का। बिजनेस इश्यूज जितने भी होते हैं कि आपने वर्क प्लेस को ट्रेस करना है, आपने वर्कर्स को देखना है, वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट है उसको आपने देखना है, वहाँ की एजुकेशन को देखना है। तो इस तरह से आप इन तमाम चीज़ों पर अगर आपका गलबा है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो आप बिजनेस को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। सार्फिन होते हैं, मसलन मैंने एक आइटम तैयार की है, अब मेरी आइटम तैयार करने के बाद मकसद ये है कि वो सेल हो, उसको कंज्यूम करने वाले लोग हों। ऐसा बिहेवियर मैं ट्रेस करूंगा जो इसको लाइक करते हों या इसके हवाले से वो अपनी पसंद का इजहार करते हों। तो ये सार्फिन का बिहेवियर इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग मोटिवेशन, ये मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है, बहुत बड़ा इस पर लेक्चर दिया जा सकता है माय डियर वेल विशर्स। मार्केटिंग इस दौर में अब देखें इश्तिहारात आते हैं मार्केटिंग के हवाले से। तो मार्केटिंग जो सेलमैन होता है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि वो उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस शख्स को कंघी सेल करके आ जाए जिसके सर पर बाल ही ना हो। तो इस तरह से मार्केटिंग ये बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है। अगर टीचर ने अपनी क्लास को टीच करना है तो उसकी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स अपने टीचर को लिसन कर रहे हों, अंडरस्टैंड कर रहे हों और उनकी तमाम बातों को पर अमल भी करते हों, होमवर्क कर रहे हों, और जो भी टीचर वहाँ पर ऑर्डर्स करता है उसके मुताबिक वो सारे के सारे काम हो रहे हों। तो ये तो हुआ मार्केटिंग। इसी तरह से हमें देखना होगा कि कौन सी लाइक और डिसलाइक्स हैं उन लोगों की जो कंज्यूमर बिहेवियर है, जो वहाँ की सराउंडिंग्स के पीपल हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, किन चीज़ों को लाइक करते हैं, किन को डिसलाइक करते हैं, लिहाजा उनकी पसंद का भी ख्याल रखना होगा। एडवर्टाइजमेंट, जब इंडस्ट्रियल और बिजनेस साइकोलॉजी की बात आती है तो साइकोलॉजी ये कहती है आप क्या करें, एडवर्टाइज करें, अपनी आइटम की क्वालिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये बहुत सारे इसके तरीके हैं। आप सेमिनार्स कर सकते हैं, आप टीवी पर एडवर्टाइज दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, मैगजीन में दे सकते हैं, आप पब्लिक जो गैदरिंग होती है वहाँ पर जाकर अपनी आइटम को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो आइटम होती है उसमें चेंज आनी चाहिए, उसका न्यू स्ट्रक्चर। जैसे आपने देखा होगा कभी ये मेहरान गाड़ी थी, उसके बाद ये आल्टो आ गई, और इस तरह से ये बढ़ती बहुत सारी गाड़ियां चेंज होती रहती हैं। बहुत सारे जो सीड हैं वो बेहतर से बेहतर आते रहते हैं मार्केट में। तो न्यू स्ट्रक्चर के साथ जब आप मार्केट में एंटर होंगे तो आपकी आइटम को सेल करने में आसानी होगी। नाउ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट लिंक। किसी भी इंडस्ट्री, प्लांट या बिजनेस में वर्कर्स रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, क्योंकि टेल पर यही काम कर रहे होते हैं। ये प्रोडक्शन में अहम इनका रोल होता है। ये अपनी प्रोडक्शन को बनाने में बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। और मैनेजमेंट, जो सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, दीगर लोग, तो ये लोग और ये लोग दोनों के दरमियान जब लिंक होगा, इंटरलेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगी, कोऑपरेशन होगा, और इस तरह से ये दोनों मिलकर वहाँ पर बेहतर काम सर अंजाम दे सकते हैं। माय डियर वेल विशर्स, क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ जाएं तो ये कंपटीशन का दौर है।
कंपटीशन के दौर में स्टूडेंट्स ने अगर पढ़ना है तो उसको इस तरह से मोटिवेट करें कि वो अगर उसमें एबिलिटी है कि वो डॉक्टर बन सके, एमबीबीएस कर सके, तो उसको उस रास्ते पर मेहनत करवानी चाहिए। अगर एक बच्चे का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, उसको मैथमेटिक्स की लाइन में मेहनत करवानी चाहिए। अगर एक बच्चा अगर टेक्निकल माइंड रखता है तो उसको टेक्निकल साइड पर लेकर जाना चाहिए। अगर एक बच्चा जो है कोई वो डिप्लोमा और कोई फन सीखना चाहता है तो मेरे ख्याल में ऐसे बच्चे को फन सिखा देना चाहिए। तो इसी तरह से जब एक इंडस्ट्री में आइटम है उसकी क्वालिटी को दिन ब दिन बेहतर होना चाहिए, उसके बारे में बाकायदा वहां पर बैठकर टीम वर्क होना चाहिए। उस टीम वर्क की बेस पर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, डेवलप किया जाए, उसकी क्वालिटी को पहले एवेल्युएट किया जाए, असेसमेंट के बाद उसको आप बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसमें बिजनेस किया है, इंडस्ट्रीज लगाई हैं। अगर हम बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकॉर्डिंग टू माइकल एच हॉल्ट कि ये दुनिया की वो हस्ती और पर्सनैलिटी हैं जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं है। पूरी दुनिया कायनात को ट्रेस कर लें, एच हॉल्ट ने भी कहा कि नंबर वन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप ट्रेडर थे, आपने तजारत की है, आपने बिजनेस किया है और उसमें आपने ईमानदारी, सादक व अमीन की हैसियत से इस कदर अच्छे अंदाज से काम किया है कि दुनिया में आपको सादक व अमीन कहा गया। दुनिया में लोगों ने अमानतें आपके पास रखी और आपने कभी भी गलत बयानी नहीं की, हमेशा सच का बोलबाला किया। इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज में आप एनालाइज करें तो वहां पर आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन नजर आएंगे, जैसे बिल गेट्स है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जनाब मलिक रियाज है और इस तरह से बहुत सारी पार्टीज के सरबराह और दीगर लोग भी इसमें उन्होंने इंडस्ट्री में, बिजनेस में अपना नाम मनवाया है। माय डियर वेल विशर्स, यहाँ पर 4 इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के हवाले से अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, राय को दिया और इंडस्ट्री को बेहतर बनाने में बहुत सारे रूल्स भी लिखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्गन मैकल, नंबर 2 पर स्टीवन, नंबर 3 जेम्स कॉक्स, नंबर 4 रॉबर्ट लॉर्ड। तो ये वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नफसियाती तौर पर बिजनेस के हवाले से काम करने के तरीकाकार को वज़ा किया और अपनी बुक्स में इंट्रोड्यूस करवाया। व्हाट इज इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस साइकोलॉजी, किस तरह से हम इन विच वे वी इम्प्रूव आवर इंडस्ट्री, आवर बिजनेस, आवर शॉप और आवर मार्केटिंग स्टाइल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।